Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Today we are going to cover the poem of our Flamingos book, which is Keeping Quiet. So let us start the poem. Now we will count to 12 and we will all keep still. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. It would be an exotic moment without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. What I want should not be confused with the total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. If we were not so single minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt the sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I'll count up to 12 and you keep quiet and I will go. So let us start understanding the poem. Theme of the poem. The power of silence and thought as a means of comprehending and engaging with the world is the theme of the poem Keeping Quiet from the class 12th English Flamingo textbook. तो जो थीम है पोएम की वो हमें ना शांत रहने की इम्पोर्टेंस बताती है और बताती है कि शांत रहने की क्या ताकत हो सकती है. In order to develop a better understanding of themselves and their surroundings, the poet emphasizes on stillness and watching nature. तो मतलब हम अपनी सोच के ऊपर और ज़्यादा मतलब अच्छी अंडरस्टैंडिंग अच्छी कमांड को प्राप्त कर पाएँ. इसी वजह से जो पोएट है वो हम सबसे बोलता है कुछ टाइम के लिए थम जाने के लिए. और वो थम जाने के लिए ये नहीं बोलता कि बिल्कुल ही एकदम बंद कर दो, सांस लेना भी बंद कर दो, ये सब. उसका मतलब था बस कुछ टाइम के लिए लाइक मेडिटेशन प्रैक्टिस करो. जिस और नेचर को देखने के लिए बोलता है, उनको उसको ऑब्जर्व करने के लिए बोलता है, जिससे हमें अपने थॉट्स पर और अच्छा क्लैरिटी मिले और हम अपने लाइफ के डिसीजंस अच्छे से ले पाएँ. The speaker makes the claim that one can develop a sense of oneness with one's surrounding and other people by remaining silent and observing. तो जो स्पीकर है उसका मानना है कि अगर हम शांति से एकदम सोच विचार करके अपने अपने कार्य को करेंगे तो हम लोगों की जो ज़्यादातर काम है वो सफल होंगे. और हमें ना दूसरों को ऑब्जर्व भी करना चाहिए कि क्या चल रहा है, उसको ऑब्जर्व करके ध्यान में रखते हुए कोई भी काम करना चाहिए. द पोएम ऑल्सो कंसिडर हाउ द मॉडर्न वर्ल्ड मे बी नॉइजी एंड डिस्ट्रैक्टेड एंड हाउ स्पेंडिंग सम टाइम टू बी साइलेंट एंड स्टिल कैन बी हेल्पफुल स्ट्रैटेजी फॉर ऑब्टेनिंग क्लैरिटी एंड इनर काम. तो जो पोएम है वो ये भी बताती है कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसमें कितना ज़्यादा शोर मचा हुआ है, एकदम डिस्ट्रैक्टिंग है, डिस्टर्बिंग है, लोग बहुत स्ट्रेसफुल रहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं. तो इस सब चीज़ों से ना ओवरकम करने के लिए वो साइलेंस को बहुत ज़्यादा वो देता है इम्पोर्टेंस. तो वो बोलता है कि मतलब हम सबको कुछ टाइम के लिए वो ना हमसे 12 तक काउंट करने के लिए बोलता है. तो ना तब तक शांत रहें और हम ना अपने थॉट्स पर अच्छा कमांड क्लेम कर पाएँ और हमें ना इससे इनर काम भी मिलेगा, बहुत अंदर से शांति भी मिलेगी. Keeping Quiet Introduction. The poem Keeping Quiet, written by Pablo Neruda, discusses the need of maintaining peace and silence. He stresses upon being quiet and harmless to the human being, animals, and environment. He suggests that in order to maintain peace and harmony, it is required to stop and introspect ourselves. तो जो पोएम है कीपिंग क्वाइट वो पैब्लो नेरूडा ने लिखी है और उन्होंने बताया है, जैसे मैंने बताया था कि पीस और साइलेंस शांति की मतलब महत्वता उन्होंने समझाई है कि आजकल की इस स्ट्रेसफुल लाइफ से हम कैसे ओवरकम कर पाएँ और उससे हम मतलब जैसे हम और ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स और एनवायरनमेंट को हार्म ना करें. जैसे अंदर से शोर मचा होता है तो हम अपने साथ साथ बाहर की चीज़ें भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं. और वो बताते हैं कि हमें ना शांति बनाए रखने के लिए ना खुद को एनालाइज करना होगा. इंट्रोस्पेक्ट मतलब खुद को देखते हैं, खुद की चीज़ों को ऑब्जर्व करके अच्छे से सोच समझ के काम करने के लिए. तो वो हमसे यही बोलता है कि हम खुद को इंट्रोस्पेक्ट करें. कीपिंग क्वाइट समरी. सो अब हम पोएम को समझते हैं. द पोएट आस्क्स ह्यूमैनिटी टू काउंट नंबर फ्रॉम 1 to 12. तो जो पोएट है वो लोगों से बोलता है कि 1 से 12 तक गिनो. 12 बीइंग द नंबर ऑफ आवर्स शोन इन क्लॉक और द नंबर ऑफ जोडियक साइंस. तो जो 12 है वो
नंबर ऑफ आवर्स भी हो सकता है 12 घंटे, जैसे 12 नंबर होते हैं ना घड़ी में, तो वो भी हो सकते हैं। और ज़ोडिएक साइन भी हो सकते हैं, मतलब न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी नंबर्स भी हो सकते हैं। ही रिक्वेस्ट एवरीवन नॉट टू स्पीक बिकॉज लैंग्वेजेस क्रिएट बैरियर बिटवीन पीपल्स। तो वो जो मना करता है, वो मना करता है कि कुछ टाइम के लिए कुछ ना बोलें, क्योंकि लैंग्वेज जो है ना बैरियर क्रिएट करती है पीपल के बीच में। जैसे कि सपोज अगर दो विभिन्न भाषा के लोग हैं, वो आपस में बात करेंगे, तो मतलब दूसरे को भी समझ नहीं आएगी बात, और हमें भी समझ नहीं आएगी कि वो क्या बोल रहा है इन दिस केस। और द मोमेंट व्हेन एवरीवन स्टॉप्स मूविंग देयर बॉडी will be very special and different as we have never experienced such a moment before। तो जो जब सब लोग रुक जाएंगे ना, अपनी बॉडी को वर्क करना भी बंद कर देंगे, और तब ना वो मोमेंट एकदम ऐसा होगा कि कभी हमने वो एक्सपीरियंस ही नहीं किया होगा, इतना इतना पीसफुल होगा। The poet says that in this period of inactivity, the fishermen would not harm the whales, the salt gatherers will not hurt their hands, those who are busy destroying the nature will adopt a new approach towards life। तो जो पोएट है वो बोलते हैं कि जब सब लोग ना रुक जाएंगे 12 मिनट या 12 सेकंड के लिए भी, जब वो ये इनएक्टिविटी करेंगे, कुछ भी ना करेंगे, तो ना उससे जो फिशरमैन्स हैं, जो मछुआरे हैं, जब वो मछलियों को पकड़ रहे होंगे तो वो भी रुक जाएंगे। तो उससे ना जो फिशेज़ हैं वो ना हार्म होना बंद हो जाएंगी। और जो सॉल्ट गैदरर्स हैं, जो नमक खट्टा करते हैं ना समुद्र के किनारे जाके, क्योंकि जो नमक होता है वो काफ़ी रॉक की फॉर्म में होता है, तो उनको ना जब खट्टा कर रहे होते हैं तो हाथों में खून भी आता है। सो उन तो ना उनके हाथ हर्ट होना भी बंद हो जाएंगे कुछ देर के लिए। और वो लोग जो बिजी हैं नेचर को डिस्ट्रॉय करने में, जैसे कि जो पेड़ काट रहे हैं लोग, और जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो हार्म कर रही हैं नेचर को, वो सब भी कुछ टाइम के लिए रुक जाएंगी, जिससे उन्हें शायद उनको थोड़ा बहुत ये पता लगे कि वो लोग क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ के साथ, मतलब क्या चीज़ें डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। शायद वो उनको इस इंट्रोस्पेक्शन से ये पता चल जाए। The men who are preparing for wars and victory based on deaths of innocent people will join their enemy and stand in unity with them doing nothing। तो जो लोग हैं, जो आदमी हैं, वो वॉर्स कर रहे हैं ना, जो सैनिक लड़ रहे हैं, वो लोग भी ना एक बार को, जब ये होगा ना, जब सब लोग रुक जाएंगे, तो वो भी एक बार को अपने दुश्मन के साथ खड़े हो जाएंगे, यूनाइट हो जाएंगे एक साथ, और चुप हो जाएंगे कुछ देर के लिए, जिससे ना जो इनोसेंट लोग हैं जिनकी जान जा रही है वो भी बच जाएगी। नो वन विल हार्म हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन। कोई भी किसी को नहीं मार रहा होगा। एवरी वन विल यूनाइट एंड पॉन्डर अपॉन हिज एक्ट एंड रियलाइज द रिजल्ट ऑफ हिज डीड्स। सब लोग रुक जाएंगे, यूनाइट हो जाएंगे, और ना इस वॉर के रिजल्ट्स देखेंगे, और ना एनालाइज कर पाएंगे कि मतलब हमें मिल क्या रहा है ये सब करके, एक दूसरे की जान लेकर। So the poet clarifies his idea and says further that he does not want that people should stand idle। जो पोएट है वो क्लैरिफाई करता है अपना खुद का आइडिया, कि वो नहीं चाहता कि लोग क्या कहते हैं एकदम अकेले पड़ जाएं। ठीक है, ही वॉन्ट्स दैट देयर शुड बी नो वॉर बिकॉज ही डज नॉट वॉन्ट टू सी ट्रक्स लैडन विद डेड बॉडीज़ ऑफ द सोल्जर्स। तो वो ये चाहता है कि ना कोई भी वॉर ना हो, क्योंकि ना वो नहीं देखना चाहता कि ट्रक्स आ रहे हैं लदे हुए सोल्जर्स की बॉडी लेके, डेड बॉडीज़ को, वो ये सब नहीं देखना चाहता। ही इज़ प्रमोटिंग यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड पीस। जो वो है पोएट, वो ना यूनिवर्सल ब्रदरहुड प्रमोट कर रहा है, मतलब भाईचारा, तो और मतलब शांति, सुख शांति आसपास के देशों में, दुश्मन देशों में भी। तो वो ये चीज़ प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है अपनी इस पोएम से। The poet says that everyone is working continuously to achieve one's goal। People are threatened by death and the fear forces them to work endlessly so that they can achieve everything quickly। जो पोएट है वो बताते हैं कि सब लोग ना कंटिन्यूसली वर्क करे जा रहे हैं अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, और जो लोग हैं वो डरे हुए हैं अपनी मृत्यु से, कि हाँ हमारी मौत हो जाएगी, जब हमारी मौत का समय आएगा हम कुछ कर नहीं पाएंगे, ये सब सोच सोच के ना, तो जो पीपल हैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, सब कुछ अचीव करने के लिए भाग रहे हैं एकदम। इन दिस मैड रश दे डू नॉट रियलाइज द रिपरक्यूशंस ऑफ देयर एक्ट। तो इनकी इस मैडनेस में, पागलबंदी में ना, वो ना ये रियलाइज़ नहीं होता कि वो लोग क्या कर रहे हैं। वो सिर्फ भाग ही जा रहे हैं अपनी ज़िंदगी को जीने के बजाय। वो मतलब रैट रेस होता है ना, चूहों की दौड़, जब मतलब कुछ है किसी चीज़ के पीछे, लालच के पीछे भागे जा रहे हैं, वैसे ही लोग, इंसान भी यही कर रहे हैं। सो ही वॉन्ट अस टू पॉज एंड कम आउट ऑफ द मैडर्स। वो चाहते हैं कि हम थोड़ी देर के लिए रुकें और इस पागल वाली दौड़ से बाहर आएँ। ही वॉन्ट अस टू बी हैप्पी अबाउट आवर अचीवमेंट एंड सेलिब्रेट देम। वो चाहता है कि हम खुश रहें हमारे छोटे से छोटे अचीवमेंट को लेकर भी, और उन्हें खुशी से मनाएं। ही वॉन्ट अस टू ओवरकम द फियर ऑफ डेथ एंड टू रिलैक्स फॉर अ वाइल। तो वो चाहता है कि हम ना फियर ऑफ डेथ से ओवरकम करें, मतलब मृत्यु से भय ना करें, वो तो आनी है सबको एक दिन। एंड टू रिलैक्स फॉर अ वाइल, मतलब
कुछ टाइम के लिए शांति से जिएं। वी शुड नो द रिजल्ट्स ऑफ आवर डीड्स एंड सेलिब्रेट अवर अचीवमेंट्स। हमें ये जानना चाहिए कि हम लोग जो ये कर रहे हैं उसका क्या रिजल्ट होगा, और हमें ना अपने अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना चाहिए। When the people will remain quiet for a while, they will realize the purpose of their life. जब ना लोग कुछ पल के लिए शांत हो जाएंगे ना, तो उनको रियलाइज़ होगा कि हम इस दुनिया में आए क्यों हैं, हमें क्या करना है। तो उनको ना मतलब ये रियलाइजेशन होगा, तो हो सकता है वो आगे चलकर और बेटर परफॉर्म कर पाए अपनी लाइफ को लेके, और खुश ज़्यादा रह पाएँ। जस्ट लाइक ऑल द क्रिएशन ऑफ नेचर अंडरगो अ रीबर्थ विद द चेंज ऑफ सीजन, सिमिलरली कीपिंग क्वाइट विल बी अ रीबर्थ फॉर द ह्यूमन सोल। तो जैसे जब कोई भी नेचर की क्रिएशन जो होती है उसका रीबर्थ होता है, तो जैसे चेंज होता है सीज़न, वैसे जैसे फूल होते हैं वो मुरझा जाते हैं, पतझड़ में पत्ते वगैरह जो होते हैं झड़ जाते हैं पेड़, और फिर सीज़न बदलते ही कुछ टाइम के बाद एकदम से फिर से खिल जाते हैं। तो वैसे ही ना वो ना ये चाहता है पोएट कि ऐसे ही जो ह्यूमंस हैं उनका भी रीबर्थ हो, कुछ टाइम की शांति के बाद जो ह्यूमंस हैं वो और निखर कर आए हैं, मतलब बहुत और अच्छे से ब्लूम करें, अपनी चीज़ों को अचीव करें। इट विल गिव अ न्यू मीनिंग टू अवर लाइफ। अगेन द पोएट सेज दैट ही विल काउंट टिल 12 एंड आस्क एवरीवन टू रिमेन क्वाइट वाइल ही लीव्स। तो वो चाहता है कि हम लोग अपनी लाइफ को एक मीनिंग दें, एक दिशा दें। मतलब ये नहीं है कि जी रहे हैं तो जिए चले जा रहे हैं, पता नहीं है क्यों जी रहे हैं, है ना, वो ये नहीं चाहता। और मतलब बिना पर्पज़ की लाइफ तो किसी काम की होती भी नहीं है। अगेन द पोएट सेज दैट ही विल काउंट। तो फिर ना दोबारा वो पोएट बोलता है कि मैं ना 12 तक काउंट करूँगा, और ना मैं चाहता हूँ कि सब लोग शांत ही रहें जब तक वो चला ना जाए। और फिर उन्होंने ना ये पोएम एंड कर दी। लाइक ये पोएम बहुत अच्छा मैसेज कन्वे करती है कि हमें बता दिए कि शांत रहने की, स्टिलनेस की मतलब क्या पावर है, क्या इंपॉर्टेंस है एक ह्यूमन लाइफ में। हर वक्त जो इंसान है वो स्ट्रेस्ड रहता है, परेशान रहता है, कुछ ना कुछ वर्क प्रेशर और कुछ भी फाइनेंशियल इश्यूज़, और जो बच्चे हैं उन पर स्टडीज़ का प्रेशर। तो इन सब चीज़ों से ना स्टिलनेस काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। कुछ टाइम के लिए रुक जाना, ना कुछ सोचना, ना कुछ विचारना, ना हंसी ना खुशी। इट इज़ काइंड ऑफ मेडिटेशन जिसमें हम एनालाइज कर पाते हैं कि हम अपनी लाइफ को कहाँ लेके जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं अपने साथ, और हम अपने डिसीजंस को ना बेटर तरीके से ले पाते हैं। और ये हमें ना काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है आगे बढ़ने में। सो थैंक यू एवरीवन। इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन देन यू कैन लाइक, सब्सक्राइब और शेयर।